Hello, investors and traders. Yesterday we saw a biggest fall in Nifty as well as Sensex, the BSE stock Sensex. What happened? What was the reasons behind it? There are many reasons. The major reason behind this fall, yesterday's fall, that was 30th of September 2024. The fall on that day was the main. What were the main reasons behind that fall? One is that China announced a bold stimulus package, and because of which what happened is that many funds, foreign investors, thought that it's the start of a new bull market in China, and that is the reason that they sold huge quantities of Indian stocks. Even at the end of the day, when NSE published the FII's net sales data, it was around 9,700 crores worth of cash market selling by FIs. So what exactly is this Chinese stimulus? And let us understand that what exactly is this China's bold stimulus package announced. So China pulls the trigger on a bold stimulus package. Buy everything, says American hedge fund. So what happens is that the FIs just poured into the Chinese market because what they are saying is it's a start of a new bull market in China, and you say buy everything. So exactly what exactly is the China's so on September 24th, People's Bank of China, the country's central bank, cut interest rates, lowered banks reserve requirements, and took steps to reduce the cost of existing mortgages. So this is the main reason why there was a huge FII selling by on 30th of September 2024. So China reduced the interest rates, lowered the bank's reserve requirements. So generally reserve requirements, like you have in India, you have SLR and CRR. So whenever you are borrowing money, you have to keep some reserve requirements with RBI. So even in China they had, so they lowered that reserve requirement. So more money was available in the banks to lend. So the central bank cut interest rates. So another thing was they cut the interest rates also. They reduced the reserve requirement and took steps to reduce cost of existing mortgages. तो ये भी important step है कि ये mortgages का जो cost है वो भी कम किया. Now that would save 50 million households about 150 billion yuan a year, it said. Further easing of reserve requirement was possible this year. So that is what the central bank governor is saying. तो अभी इसमें क्या है कि the more surprising were two new tools to boost the stock market. So ये स्टॉक मार्केट को बूस्ट करने के लिए एग्जैक्टली चाइना ने क्या अनाउंस किया है तो देखते हैं. सेंट्रल बैंक विल हेल्प फर्म्स बाय बैक देयर ओन शेयर्स बाय रीफाइनेंसिंग बैंक लोन्स यूज्ड फॉर दैट पर्पस. तो ये चाइनीज सेंट्रल बैंक, अभी चाइना में क्या हो रहा है कि चाइना वॉज अभी तक प्रमोटिंग द लार्ज कॉर्पोरेट्स, लार्ज कंपनीज, बट अभी क्या चाइना इज नाउ ready to help smaller companies, or what they are saying is that they are ready to help firm buy back their own shares by refinancing bank loans used for that purpose. It will help securities companies, insurers, and other institutional investors raise funds by making their balance sheets more robust. So this is the more important thing. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द कंपनीज बाय बैक देयर ओन शेयर्स. So finance bank loans will be refinanced. So they'll be able to borrow safe liquid assets like government bonds from PBOC using their riskier and less liquid assets such as stocks and collateral. The government is trying to fund these companies. The combined size of these tools was 800 billion yuan, although this could double or triple if the need be. So वो डबल भी हो सकता है. 2 days later, Politburo of China's ruling Communist Party devoted September to the economy, a break with its traditional political calendar, no doubt motivated by deteriorating economic circumstances. It spoke of new situations and problems where in July it had spoken of new momentum and new advantages. So what specifically does the central government have in mind? According to Reuters, it will issue additional 2 trillion yuan of bonds, an amount equal to roughly 1.5% of China's GDP. बहुत बड़ा amount है. 2 trillion of yuan of bonds. So they are going to issue 2 trillion yuan of bonds. That is 1.5% of China's GDP. As important as amount of money raised are always will be spent, half of it will be help diffuse risk that local governments go bust. And other half will encourage spending by rural households and firms. So ये important है. So इसमें से आधी जो amount है वो it will help diffuse the risk, मतलब risk कम करने को ये हो रहा है. Second part, it will encourage household firms and consumption. Okay. Some of the second trillion will be plowed into government's existing cash for clunker scheme, where it encourages firms and households to trade in old equipment, cars and appliances for newer, greener gear,
फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू स्मार्ट टॉयलेट। सो अभी इसमें कैसा है कि गवर्नमेंट कैश देगी लोगों को, फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स को, मतलब लोगों को कैश देगी, जिससे उनके पास जो पुराने इक्विपमेंट है, पुरानी कार्स है, पुराने अप्लायंसेस है, उसकी जगह पे उनको नए नए इंस्ट्रूमेंट्स, नए गियर, नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल जाएंगे। द रेस्ट विल हैव फाइनेंस मंथली हैंड आउट टू एक्सपांडिंग फैमिली, 800 युआन पर चाइल्ड एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट। तो 800 युआन एक चाइल्ड पे उन्होंने फाइनेंस करने का अनाउंसमेंट किया है। अकॉर्डिंग टू 2114 मिलियन चिल्ड्रन कुड बे लिमिट। तो ये 800 युआन पर चाइल्ड का उन्होंने जो अनाउंस किया है, जिसमें 114 मिलियन चिल्ड्रन को फायदा होगा। आगे इन लोग क्या बोल रहे हैं कि दीज ईजिंग मेजर्स ओके स्टिल फॉल शॉर्ट ऑफ 2008 बजूका। तो बजूका मूवमेंट जो चाइना में हुआ था 2008 में, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पे स्टिमुलस अनाउंस किया था। तो दैट क्राइसिस इरा पैकेज ऑफन लेबल्स 4 ट्रिलियन युआन स्टिमुलस। तो ये जो 2008 में उन्होंने चाइना ने अनाउंस किया था, इट वाज अ 4 ट्रिलियन युआन स्टिमुलस, बट इस दिस टाइम इट वॉज एट 27% ऑफ 2009 जीडीपी। तो ये बहुत बड़ा स्टिमुलस उन्होंने अनाउंस किया था 2008 में। तो ये अब उसके बाद अभी 2024 में उन्होंने नया स्टिमुलस अनाउंस किया है। चाइना स्टिमुलस दिस वीक कंफर्टेबली एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन। मतलब ये जो स्टिमुलस का जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये स्टिमुलस कितना आएगा, तो ये सबसे ज़्यादा आया है। जो जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना आएगा, उससे ज़्यादा आया है। इट हैज सेंड अ पावरफुल सिग्नल, ये भी इंपॉर्टेंट सिग्नल है। तो central banks leaders told branch officers to go all out in implementing Politburo's vision. Other officials getting a similar as saving the economy and rescuing markets become political correct. Maybe officials are like to jump on the bandwagon and display their loyalty. So इसमें ऐसा है कि अभी इनको किसी भी हालत इकोनॉमी को सेव करना है और मार्केट को रेस्क्यू करना है। सो दैट इज व्हाट नमूरा इज सेइंग। अभी ये जी जी चाइना में जो इंडेक्स है, वो चाइना का इंडेक्स आप देख सकते हो कि एक दिन में जो सितंबर में गया है, 30 सितंबर को अचानक से शूट अप किया। इट हैज रीजन मोर देन 15% इन वीक। एक वीक में 15% मार्केट बढ़ा है। इट सिग्नल बीजिंग हैव इवन इम्प्रेस सम इन्वेस्टर्स इन अमेरिका। दिस इज इनक्रेडिबल स्टफ फॉर दैट प्लेस, सेड डेविड टेपर। तो ये हेज फंड्स वाले बोल रहे हैं कि ये इनक्रेडिबल स्टफ, मतलब दिस वाज आउट ऑफ द ब्लू, मतलब ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इनका स्टिमुलस आया है। एंड उस हेज फंड, अमेरिकन एक हेज फंड ने ऐसे भी बोला है कि एवरीथिंग एवरीथिंग बाय एवरीथिंग एवरीथिंग, दिस इज व्हाट दे हैव सेड। सिग्नल कैन बी इंपॉर्टेंट। द वर्ड बजूका, मतलब इसमें कैसा है कि बजूका जो वर्ड है, ये बजूका वर्ड is refers to a shoulder mounted weapon. Okay, the bazooka मतलब shoulder mounted weapon. तो originally क्या हुआ था, it a strange kind of wind instrument. It measures announced and leaked to the media this week, not as powerful as 2008 stimulus, but as a clarion call to stock market investors, they have been just as successful. मतलब ये बोल रहे हैं कि 2008 का जो मैसिव स्टिमुलस चाइना ने दिया था, उसके कंपैरिजन में ये स्टिमुलस लिटिल बिट कम है, बट स्टिल दिस स्टिमुलस इज मच मोर देन व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। ओके, तो अभी इसका इंडिया का मार्केट क्यों गिरा, अभी ये देख सकते हैं कि इसमें ऐसा है कि जो चाइना ने अनाउंस किया है, उसके बेस पे चाइनीज स्टॉक्स हैव गॉन अप। तो अभी ये इसमें ऐसे अनदर एक पॉइंट आया है कि इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर्स हु मिंटेड मनी फॉलोइंग द मंत्रा ऑफ बाय इंडिया एंड सेल चाइना इन लास्ट 2 years। तो लास्ट 2 साल में चाइना में कंटिन्यूस सेलिंग हो रही थी और इंडिया में बाइंग हो रही थी। अभी इन लोग रिवर्स स्टेप लेने वाले हैं कि चाइना का जो बीजिंग का बजूका स्टिमुलस आया है, जो इतनी इकोनॉमी को रेस्क्यू करने का, मार्केट्स को रेस्क्यू करने का जो मेजर्स है, उसके बेस पे ये रिवर्स हो जाएगा। जो बाय इंडिया एंड सेल चाइना जो 2 साल से चल रहा था, वो ऐसे हो सकता है कि बाय चाइना सेल इंडिया, ये भी होने का इसमें डर है। तो इसकी वजह से इंडियन मार्केट्स क्रैश हो गए ऑन 30 सितंबर। तो इसमें चाइनीज मार्केट कितना बढ़ा है, तो 25% इन 1 वीक, और हैंगसेंग इंडेक्स 16% बढ़ा है। तो ये इंडेक्स लेवल पे अगर 25% जंप होता है, तो इसको बोलते हैं कि ये बुल मार्केट टेरिटरी में चला गया है। ये इंडेक्स CSI 300 जो है बुल मार्केट टेरिटरी में गया है। तो और मार्क मोबियस का एक इंटरव्यू आया है कल, जिसमें उन्होंने बोला है कि चाइना कुड बी ऑन अ स्टार्ट ऑफ अ बिग बुल मार्केट। तो ये that is what everybody is jumping on the Chinese investment bandwagon। अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं कि
ये जो दलाल स्ट्रीट पे जो रैली चल रही है वो रिटेल ड्रिवन लिक्विडिटी रैली है, और एफआईएस ने मोर लेस ऐसे सस्टेन बाइंग किया नहीं है। लेकिन अभी अगर चाइना रिवाइव होता है, चाइना की स्टोरी रिवाइव होती है बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस पैकेज, चीप वैल्यूएशन एंड अंडरवेट, तो चाइना में जो है अट्रैक्टिवनेस क्यों बढ़ रहा है कि उनका वैल्यूएशन बहुत चीप है कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया के कंपैरिजन में अगर कम वैल्यूएशन पे इन लोग को एफआईएस को स्टॉक मिलेंगे तो वो डेफिनेटली चाइना में शिफ्ट होंगे। स्टिमुलस मेजर गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है कंपनीज को, और अभी तक जो एफआईएस का अंडरवेट स्टैंड था तो ये पूरा रिवर्स होने का बहुत बड़ा डर है, बिकॉज ऑफ विच सेल इंडिया एंड बाय चाइना का जो नया नरेटिव जो चालू हो गया है, इसको और थोड़ा और ये मिल सकता है। इंडिया ने तो अच्छा परफॉर्म किया, तो यहाँ पे उन लोग को प्रॉफिट्स में है, तो वो प्रॉफिट्स बुक करके दे विल बाय चीपर चाइनीज स्टॉक्स। दिस इज व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग। तो इंडिया विल, देखो सिंगापुर फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म क्या बोलती है कि इंडिया विल अंडर परफॉर्म चाइना फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। तो ये भी इन लोग अभी ऐसे बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस बिग स्टिमुलस इन चाइना, इंडिया विल अंडर परफॉर्म चाइना इन 2024। so this is very dangerous statement which is made here कि money will be moving out of India and it will be invested in China, तो थोड़ा बहुत आउटफ्लो हो सकता है एफआईएस का, बट देन इट इज नॉट दैट दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल। इसमें ऐसा है कि इमर्जिंग मार्केट्स में मनी विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स इंडिया आल्सो, दैट वाज मार्क मोबियस हु said that even India will be a beneficiary among the emerging markets where the money inflow, the FI inflow will happen। अभी इसमें ऐसा है कि इसके पूरे सिचुएशन में व्हाट एग्जैक्टली इज एफआई स्टैंड, एफआई क्या करेंगे इसमें, तो यही देखना है। चीप चाइनीज वैल्यूएशन, एक चाइनीज स्टॉक का चीप वैल्यूएशन है अगेंस्ट एक्सपेंसिव इंडियन स्टॉक्स। तो तो ये एफआई स्टैंड क्या होने वाला है कि अगर दे इंडिया में बेच के सम मनी विल बी डाइवर्टेड टू चाइना, बिकॉज कल का जो सेल ऑफ आया था जिसमें 10,000 करोड़ का जो एफआई ने कैश बेसिस में सेल किया है, वो दिखा रहा है कि शायद एफआई द पुलिंग आउट मनी फ्रॉम इंडियन फंड, इंडियन मार्केट, एंड बिकॉज द चाइनीज स्टिमुलस पैकेज इज यूज, दे आर ट्राइंग टू मूव द मनी आउट ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज अभी फिलहाल चल रही है। तो अभी इतना ही देखना है हमको कि ये चाइना का जो स्टिमुलस है वो कब तक चलेगा। लेकिन अभी आप चाइना में अगर देखोगे तो चाइना में जो है because of the latest stimulus cheer, but what exactly is the Chinese ground level चाइना में क्या है, तो ग्राउंड लेवल चाइना में अभी तक उनकी इकोनॉमी इतनी कुछ खास नहीं है। जैसे कोविड-19 के बाद चाइना की इकोनॉमी हैज बीन गोइंग डाउन ईयर आफ्टर ईयर, एंड जो उनके एम्प्लॉयज है दे आर हिट बाय पे कट्स एंड ले ऑफ्स। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनके एम्प्लॉयज के ऊपर वहाँ पे ले ऑफ्स का एक डर पैदा हुआ था। फिर मिडिल क्लास फैमिलीज जो है उनकी वेल्थ इज स्लैश बाय क्रम्बलिंग हाउस प्राइस, तो उनके यहाँ पे हाउस प्राइसेस क्रैश होने से मिडिल क्लास के लोगों का काफ़ी सारा लॉस हुआ है इसमें, क्योंकि हाउसिंग प्राइसेस गिर गए थे। ओके, और दूसरा ये है कि मंथ्स लीडिंग टू, अब ये 75th एनिवर्सरी जो हो रहा है पीपल्स रिपब्लिक का चाइना में आज, तो चाइना का मार्केट बंद है फॉर दिस वीक। द मूड वॉज एनकैप्सुलेटेड बाय न्यू बस फ्रेज द गार्बेज टाइम ऑफ हिस्ट्री। ये भी बोल रहे हैं कि गार्बेज टाइम ऑफ हिस्ट्री, उसके बीच में स्टिमुलस आया है। तो फाइनल मिनट्स ऑफ बास्केटबॉल गेम, one team trailing so behind that all the efforts to win seem futile. Some Chinese believe that country is trapped in a similarly bleak period with little hope for turnaround। मतलब चाइनीज लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी में रिवाइवल हो सकता है, बिकॉज उनका प्रॉब्लम ये है कि दे आर गोइंग थ्रू बिग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ क्रम्बलिंग हाउसिंग प्राइसेस। पेसिमिज्म जो चाइना में जो चल रहा है, तो इसमें कैसे कोविड के बाद में जो पेसिमिज्म जो चाइना में चल रहा है, तो चाइनीज बोल रहे कि दे शुड, हाउसिंग बबल जो हुआ था, ठीक है, तो उससे उन लोग इम्प्रूव हो रहे हैं। लास्ट वीक आफ्टर मंथ्स ऑफ इंक्रीजिंग ग्रीन इकोनॉमिक डेटा, चाइनीज लीडर जिनपिंग gave a not too much needed stimulus package to shore up faith in the world's second largest economy। okay? तो ये सब चाइना में अभी चल रहा है। तो इसमें देखना है कि ये जो चाइना में जो स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हुआ है उससे कितना मनी चाइना की तरफ जाएगा, कितना पैसा चाइना की तरफ जाएगा और कितना पैसा इंडिया में आएगा, तो ये सब देखने की जरूरत है।
लेकिन इसमें ऐसा भी है कि स्टिम्युलेटिंग द स्टॉक मार्केट डजंट रियली डू मच फॉर रियल इकोनॉमी इन चाइना। ऐसा एक व्यू भी है कि स्टॉक मार्केट को अगर उन लोग स्टिम्युलेट करेंगे तो इसका मतलब आपकी जो रियल इकोनॉमी है वो रियल इकोनॉमी भी इंप्रूव होनी चाहिए। इट इज नॉट दैट कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगा तो अच्छा है। तो बिकॉज काफी कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, तो चाइना का रियल इकोनॉमी में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं। तो ये जो चाइनीज हाउस होल्ड का जो इन्होंने जो लॉसेस सफर किए बिकॉज ऑफ हाउसिंग मार्केट कोलैप्स, इसका टोटल 18 ट्रिलियन का एस्टिमेटेड है बार्कलेस के हिसाब से। 18 ट्रिलियन डॉलर्स का इन लोग का लॉस ऑफ वेल्थ, जो वेल्थ का लॉस हुआ है वो 18 ट्रिलियन डॉलर्स का है। तो उतना अगर लॉस हुआ है तो लोगों के पास पैसा भी नहीं रहेगा टू spend more money. So if each of the 3-person household in China lost over $60,000, an amount that is almost 5 times China's per capita gross domestic product. तो ये स्टिमुलस पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया है, तो दिस इज गोइंग टू टैकल दिस इश्यू ऑफ मैसिव लॉस ऑफ वेल्थ विच चाइना हैज रिसीव्ड। तो अभी देखते हैं कि प्रॉपर्टी में चाइना क्या करती है, बिकॉज आउटलुक फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी मेक्स अबाउट अ क्वार्टर ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, 70% ऑफ हाउस होल्ड वेल्थ रिमेन्स डीम। मतलब ऐसे है कि इसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने सब पूरा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है चाइना में, क्योंकि काफी सारे लोगों का वेल्थ जो है वो 70% रियल एस्टेट में गया था चाइना में। तो अभी ऐसे भी बोल रहे कि बेजिंग कैनॉट डू मच बिकॉज द प्रॉपर्टी सेक्टर जो है उसमें अभी रिवाइवल कितना आ सकता है वो चाइना को देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स में इम्प्रूव होके लोगों को कितना वेल्थ ये होगा, रिकवर होगा। तो दिस इज व्हाट इट इज। सो लेट अस लुक हाउ द stock market will perform in the next few days. बट डेफिनेटली व्हाट इज हैपनिंग द चाइना में जो इन्होंने स्टिमुलस अनाउंस किया है उससे काफी हलचल हुई एफआईएस की के यहाँ पे। और इसका ट्रेंड ऐसा होना नहीं चाहिए कि सेल इंडिया बाय चाइना, बट द ट्रेंड विल बी दैट द एफआईएस विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग इनटू इंडियन मार्केट्स, बिकॉज द इंडियन मार्केट्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस ज्यादा दिख रहा है, बट ऑन अ फॉरवर्ड बेसिस डेफिनेटली एज जैसे अर्निंग्स इंप्रूव होंगे वैसे इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम आएगा, तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन मार्केट्स विल इंक्रीज टुवर्ड्स द फॉरेन इन्वेस्टर। तो ultimately the summary of all these things is though every country wants to attract foreign investors or foreign money, which is China is also doing the same thing. So that way the depending on weightage FIs are going to invest it is depending on their Chinese weightage they are going to invest in Chinese market, depending on India weightage they are going to invest in India। बट ऐसा नहीं कि पूरा पैसा निकल जाएगा इंडियन मार्केट से। डेफिनेटली देयर विल बी सम फ्रॉड जहाँ पे है, जहाँ एक्सेसिव वैल्यूएशन वो दैट विल बी कमिंग डाउन अ बिट। But overall FIs will look at India in a positive way because Indian markets are doing well, Indian economy is going to do well। तो accordingly थोड़ा बहुत पैसा इंडिया से आउटफ्लो होके चाइना में जा सकता है, बट नो नीड टू फियर that this is going to create a big crash in the Indian market। I don't think that will be that will happen, because at every lower levels they will be buying by FIs। So I hope you like this video. In case you like this video, kindly click on the like button and subscribe to the channel. Thank you.